Hello, very good evening, students. I hope you're fine. I welcome you all on India's largest online live learning platform, that is an Academy's YouTube channel, Let's Crack Gate and ESE Civil, जहां पर हम लोग आपको तैयारी कराते हैं बहुत सारे बढ़िया बढ़िया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करना है। सो लेट्स क्रैक इट आवर एग्जाम विद द हेल्प ऑफ अन अकेडमी यूट्यूब चैनल. So you can crack GATE, you can crack ESC with India's largest online live learning platform, that is an Academy. An Academy बहुत टाइम से जो है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता हुआ आ रहा है। अन अकेडमी के बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहां पर आप फ्रीली क्वालिटी कंटेंट पढ़ सकते हैं। अन अकेडमी के ऐप पर स्पेशल क्लासेस होती हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, उनकी भी आप एक्सेस ले सकते हैं। बट इन सब के अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी और बढ़िया तरीके से हो तो आप अन अकेडमी का बहुत ही बेहतरीन प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और रिसेंटली एक बहुत ही जबरदस्त सब्सक्रिप्शन आया, दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। बाय टेकिंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यू विल गेट एन एक्सेस टू अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज from India's best educators, Moving forward, this is all about me. My name is Mohammad Ehtisham Siddiqui, well known in the market with the name that is Siddiqui sir. My name is Mohammad Ehtisham Siddiqui and I am well known in market with Siddiqui sir. I am alumni of India's topmost university, that is Jamia Millia Islamia New Delhi. I am 4 times GATE qualified and having almost 3.5 years of teaching experience. Having almost 3.5 years of experience, 6 months I have devoted in an academy. So around 6 months I have devoted on an academy and 3 previous years of experience. So as of now, I have around 3.5 years of teaching experience. And during these 3 years, I felt that I have developed an experience of 10 years because I have rigorously taught many students and for the different examinations. So I feel that I have taught around 10 to 12 hours per day continuously. So I feel that I have developed a more than 10 years of experience, and this is the only reason that I have guided around 10,000 students, and many students have cleared the examination with the good rank and now working in the different department. Based upon my this experience only, I have designed the questions, I have designed the test series, I have designed the most expected questions in any examinations. And because of these reasons only, that many students have cleared many examination with the good rank. But recently 2 students have cleared that examination with all India rank 1. So 2 students have cleared 2 different examination with all India rank 1 under my guidance. Okay, so you can just फील दैट सिद्दीकी सर आपको इतना पढ़ा सकते हैं कि आपकी AIR रैंक 1 तो आ ही जाएगी। दिस इज माय रेफरल कोड। आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप इस रेफरल कोड को यूज कर सकते हैं। मैं कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाता हूं? जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स, environmental engineering, structure analysis, surveying, and construction planning and management. I also teach construction planning and management. So moving forward, अगर आप अभी तक आपने अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करी, which is nothing but the basically the bulk of knowledge you will get on the Unacademy learning app. जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं वो सारी की सारी Unacademy के ऐप पर होती हैं। जैसे अभी 9 बजे हम लोग क्या करने वाले हैं? अभी हम 9 बजे जो है हमने एक सीरीज शुरू करी है, दैट इज कॉल्ड एज वन लाइनर सीरीज। तो उस वन लाइनर सीरीज में हम लोग कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे और उन वन लाइनर क्वेश्चंस की मदद से आप कम समय में ज्यादा कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। तो 9 बजे हम लोग वो वन लाइनर सीरीज करने वाले हैं, सब लोग बेटा ज्वाइन हो जाइएगा। मूविंग फॉरवर्ड, if you take the subscription, you will get daily live classes, daily live tests and quizzes, structured courses, unlimited access to the recorded classes. If we talk about the iconic subscription, in iconic subscription you will get a personal coach, your study will be tracked, you will get question answer practice for mains, all the benefits of plus you will get प्लस सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का बेस्ट सब्सक्रिप्शन है। डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है रिकॉर्डेड लेसंस की, है ना। दीज आर द टॉप एजुकेटर्स जिनकी मदद से आप बेटा अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है तो आप मारूद तिवारी सर से पढ़ेंगे। अगर आपका कोई फ्रेंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है तो अंकित गोयल सर एक्सपर्ट फैकल्टी हैं। संचित जैसन इज फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। जसपाल सर, अगर आप सिविल से हैं तो गॉड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग नन अदर देन जसपाल सर हमारी फील्ड में है। तो आप इन सब एजुकेटर से पढ़ेंगे। कमाकालकर पांडे सर हैं, सौरभ पांडे सर नॉन टेक पढ़ाते हैं, है ना।
इसी तरीके से अगर आपके कोई फ्रेंड मैकेनिकल में है ना, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़नी है, तो ऑल द बेस्ट एजुकेटर्स आर देयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ये सारे बेस्ट एजुकेटर्स हैं। गेट एईएससी में हमने 7 कोर्सेज डिजाइन कर रखे हैं, 7 के 7 कोर्सेज में आपको एक्सेस मिल जाती है। मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप बेटा प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगर आप बेटा प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगर आप बेटा प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया ये बेनिफिट्स मिलते हैं। और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक पर्सनल कोच मिलता है, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस होती है, स्टडी को ट्रैक किया जाता है और आपको मिलता है बेटा एक प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल। अगर हम फीस की बात करें तो बेटा 2 साल की जो फीस है वो 44,000 है, 1.5 साल की जो फीस है वो 38,500 है ना, 1 साल की जो फीस है 30,250 है, 6 मंथ की फीस 24,750 है, 3 मंथ की फीस 13,750 है और 1 मंथ की फीस है आपकी 5500 रुपए। लेकिन अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको इतनी फीस देनी नहीं है, क्योंकि अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे ES001, नीचे रेफरल कोड में आएगा हैव रेफरल कोड, वहां पर एंटर कर दीजिए ES001। जैसे ही आप ये कोड एंटर करेंगे वैसे ही आपको बेटा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यू विल गेट ए इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ 10%। तो जो फीस आपकी 44,000 की है वो 39,600 की हो जाएगी। जो फीस आपकी 18 मंथ्स की है 38,500 वो हो जाएगी 34,650। जो 1 साल की फीस है वो हो जाएगी 27,225। जो बेटा 6 मंथ्स की फीस है वो हो जाएगी 22,275। जो बेटा 3 मंथ्स की फीस है वो हो जाएगी 12,375 और जो 1 मंथ की फीस है वो हो जाएगी 4,950. So this is all about the plus plan. If you talk about the iconic subscription, the fees for the iconic subscription is 50,250 and for 2 years the fees is 74,000 rupees. But इतनी फीस आपको देनी नहीं है, आपको अगेन अपने प्यारे सिद्दीकी सर का मैजिकल कोड यूज करना ES001। जैसे आप ES001 यूज करेंगे आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी फीस हो जाएगी 45,225 और 66,600 रुपीज। देखिए क्या है ना, अगर बहुत सारे बच्चों को प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग कोई डाउट्स होते हैं, तो अगर आपको प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग कोई डाउट्स हैं तो आप जो है आप मेरे से पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिविल बाई सिद्दीकी सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करिए और वहां सिद्दीकी सर को मैसेज कर दीजिएगा। सिद्दीकी सर जैसे ही फ्री होंगे आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई करेंगे और आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे व्हाट द बेनिफिट्स व्हिच यू गेट इन द आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन, और साथ ही साथ क्या रियली में या आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन आपकी प्रिपरेशन को एक बहुत बढ़िया तरीके से करा सकता है, नहीं करा सकता। तो अगर आपको कोई डाउट है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 0.001% भी है, तब भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्लियर हो रही बात? सो वी आर स्टार्टिंग आवर रैपिड रिवीजन। सो ऑलरेडी वी हैव डन 12 रीजन, ऑलरेडी हम लोगों ने 12 पार्ट कर रखे हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द 12 पार्ट। अब हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस the 12 paths. Now we are moving to the next part. So next part को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं and all the students are requested to like the video. सारे के सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए। सॉरी, टुडे हमने 12 पार्ट्स कर रखे हैं। आज हमारा, हाँ मैं भी यही बोल रहा था, हमने 12 पार्ट्स कर रखे हैं और आज हमारा बेटा 13 पार्ट्स। तो 13वां पार्ट आज हम करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे परमिएबिलिटी के बारे में। तो लास्ट क्लास में हमने सीपेज के बारे में पढ़ा था। जिन भी बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो जाइए और बेटा प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी वीडियोस प्रीवियस देख सकते हैं। हमने सीपेज फोर्स के बारे में बताया था, सीपेज प्रेशर के बारे में पढ़ाया था, कैसे सीपेज के दौरान इफेक्टिव स्ट्रेस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको क्विक सैंड कंडीशन के बारे में बताया था। क्विक सैंड कंडीशन क्या होती है, किसमें होती है, कब होती है, इन सब के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम अपना 13th पार्ट करने वाले। इन दिस क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट द 13th पार्ट। In this class, we are discussing about the 13th part and today we are discussing about the permeability. आज हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं permeability के बारे में। So what is permeability? You know the permeability. What is permeability? You know the permeability किसी भी सॉइल की वो प्रॉपर्टी है, किसी भी सॉइल का वो गुण है जिस गुण के कारण सॉइल अपने थ्रू पानी को बहने देती है। तो इट इज बेसिकली दैट प्रॉपर्टी which allows the water to flow through it. बेटा ये सॉइल की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण सॉइल अपने थ्रू पानी को बहने देती है। यस और नो?
So in this chapter of permeability of soil, we will discuss one law that is called as Darcy law. हम लोग एक लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे. That law is called as Darcy law. बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को सीखते जाएंगे, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं. तो रिवीजन में आपको पता है किस तरीके से चीजें कराई जाती हैं. पूरा इन डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, लेकिन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे. So what is Darcy law? What Darcy law says? डार्सी लॉ क्या कहते हैं, डार्सी बाबा क्या बोलते हैं, जरा सिंपल से सुन लीजिए. आपको पहले से पता भी होंगी चीजें, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं. सो व्हाट डज डार्सी सेज? डार्सी सेज, सपोज दिस इज द सॉइल सैंपल, this is the soil sample, and there is a hydraulic gradient, there is a soil sample, and there is a hydraulic gradient between the two ends of this soil sample. So what does Darcy says? Darcy says when there is a hydraulic gradient between 2 points, अगर soil के किन्हीं 2 points में hydraulic gradient है, तो soil के total area से, उस soil के टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, अगर हम बात करें टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये जो सामने वाला जो एरिया है, दैट इज कॉल्ड एज टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है और पानी इस डायरेक्शन में इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो इसका जो परपेंडिकुलर एरिया है, इसके फ्लो की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का जो एरिया है, उस एरिया को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो डार्सी बाबा कहते हैं, इफ देयर इज अ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बिटवीन द टू एंड्स ऑफ एनी सॉइल सैंपल, तब उस सॉइल सैंपल के टोटल पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से बहने वाली वेलोसिटी जो है वो बेटा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. डार्सी सेज द वेलोसिटी of the flow through the whole cross sectional area is directly proportional to hydraulic gradient, is directly proportional to hydraulic gradient. तो जब आप इस directly proportionality sign को हटाएंगे, तब आपका एक कांस्टेंट आएगा, that is equal to k into I, that is equal to k into I, where k is nothing but called as permeability, coefficient of permeability. It is called as coefficient of permeability. How you define? What is coefficient of permeability? If the flow is occurring at unit hydraulic gradient, अगर आपने फ्लो किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पे कराया, तो जो भी वेलोसिटी होगी पानी के फ्लो होने की, वही कहलाएगी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, वही कहलाएगी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी. तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज द वेलोसिटी ऑफ द वाटर through the whole cross sectional area when the water is flowing at a unit hydraulic gradient, when the water is flowing at a unit hydraulic gradient. तो पूरे एरिया से बहने वाले पानी की वेलोसिटी, पूरे एरिया से बहने वाले पानी की वेलोसिटी होती है v is equal to k into I. तो अगर मैं डिस्चार्ज निकालूं, तो डिस्चार्ज क्या होगा, डिस्चार्ज होगा पूरे एरिया का क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई पूरे एरिया से बहने वाली वेलोसिटी. तो यहां से डिस्चार्ज जो आपका सीप हो रहा है सॉइल से, वो हो जाएगा Q इज इक्वल टू K इंटू I इंटू A. तो डिस्चार्ज की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, डिस्चार्ज की वैल्यू आ जाएगी बेटा, वेलोसिटी की तो वैल्यू आ गई, पूरे एरिया से बहने वाली वेलोसिटी की वैल्यू आ गई v इज इक्वल टू K इंटू I, और पूरे एरिया से या फिर सिंपली सॉइल से बहने वाला डिस्चार्ज भी आ गया, दैट इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू K into I into A. Yes or no? So if I talk about the relative terms, what are the things which are available? So सबसे पहली जो term है, that is called as hydraulic gradient. I have already discussed about the hydraulic gradient in the previous class. So what do you mean by the K? What is K? K is called as coefficient of permeability. What is K? K is called as coefficient of permeability. K is nothing but the coefficient of permeability. Similarly, if I ask about what is V, V is called as, what is V? I will discuss it later. Firstly, I will discuss other terms. What is A? What is A? A is the cross-sectional area. What is A? A is the cross-sectional area. A is the cross-sectional area. What do you mean by cross-sectional area? That is the area perpendicular to the direction of flow. Flow की डायरेक्शन में जो एरिया होगा, that area is called as cross sectional area. If I talk about Q, what is Q? Q is called as the seepage discharge.
कितना पानी सीप कर रहा है सॉइल के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एज सीपेज डिस्चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज सीपेज डिस्चार्ज। एंड व्हाट इज वी वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी की मदद से आपने सीपेज डिस्चार्ज निकाला है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्चार्ज वेलोसिटी। ये वो वेलोसिटी है जिसकी मदद से डार्सी बाबा का यूज करके, या डार्सी बाबा ने जिस वेलोसिटी को डिफाइन किया, दैट इज कॉल्ड एज डिस्चार्ज वेलोसिटी। लेकिन डार्सी बाबा ने कहा कि पूरे एरिया से बहने वाली सॉइल, पूरे एरिया से बहने वाले पानी की जो वेलोसिटी है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्चार्ज वेलोसिटी, वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन एज यू नो सॉइल में बहुत सारे वॉइड्स होते हैं क्या? इस तरीके से सॉइल में क्या होते हैं? इस तरीके से सॉइल में बहुत सारे वॉइड्स होते हैं, देयर आर मेनी वॉइड्स इन द सॉइल। तो डार्सी बाबा ने कहा कि जो सॉइल के टोटल एरिया से बहने वाली वेलोसिटी है वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन ये तो बात उन्होंने गड़बड़ कह दी, क्योंकि जो पानी बहता है वो सॉइल के टोटल एरिया से नहीं बहता, पानी तो बेटा सॉइल के वॉइड से होकर जाता है। सो इसका मतलब जो डार्सी बाबा ने ये वेलोसिटी डिफाइन करी, दैट इज कॉल्ड एज डिस्चार्ज वेलोसिटी, ये वेलोसिटी सही नहीं है। दैट्स व्हाई दिस डिस्चार्ज वेलोसिटी इज कॉल्ड एज झूठी वेलोसिटी। दिस डिस्चार्ज वेलोसिटी इज आल्सो कॉल्ड एज superficial velocity. It is also called as superficial velocity. It is not the actual velocity. ये actual velocity नहीं है, ये बेटा झूठी velocity है। तो अगर आप actual velocity निकालेंगे, so ऐसे लिख सकते हैं the above velocity, the above discharge velocity, the above velocity ऐसे लिख सकते हैं, the above discharge velocity, the above discharge velocity, the above discharge velocity defined by Darcy, defined by Darcy, defined by Darcy is not the actual velocity, is not the actual velocity, is not the actual velocity, because water flows through, because water flows through, because water flows through area of voids, because water flows through area of voids and not through whole cross sectional area, not through whole क्रॉस सेक्शनल एरिया, नॉट थ्रू होल क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर आपको एक्चुअल वेलोसिटी निकालनी है उसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। एक्चुअल वेलोसिटी का मतलब है, तो एक्चुअल वेलोसिटी का मतलब क्या है? एक्चुअल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ द वाटर थ्रू द वॉइड्स। वॉइड्स के थ्रू जो वेलोसिटी होती है उसको हम सीपेज वेलोसिटी भी कहते हैं, और उसकी वैल्यू आती है बेटा डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइडेड बाई पोरोसिटी। वीएस होता है, वीएस आता है बेटा, वीएस इज इक्वल टू डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइडेड बाई पोरोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो बेटा हमारी जो सीपेज वेलोसिटी है या हमारी जो एक्चुअल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमारी जो बेटा एक्चुअल वेलोसिटी है दैट इज कॉल्ड एज सीपेज वेलोसिटी वीएस। तो हमारी बेटा सीपेज वेलोसिटी, हमारी बेटा जो सीपेज वेलोसिटी जो वीएस आ जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी? दैट इज इक्वल टू डिस्चार्ज वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू डिस्चार्ज वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू डिस्चार्ज वेलोसिटी वी, और डिवाइड कर देंगे इसको किससे? डिवाइडेड बाई पोरोसिटी, डिवाइडेड बाई पोरोसिटी। ये है एक्चुअल वेलोसिटी। लेकिन एक्चुअल वेलोसिटी हमने निकाल तो ली, लेकिन एक्चुअल वेलोसिटी निकालने के बाद भी हम कुछ उखाड़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि बेटा एज ए इंजीनियर हम इस बात में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं कि सॉइल के थ्रू पानी धीरे धीरे बह रहा है या जल्दी जल्दी बह रहा है, यस और नो। क्योंकि एक्चुअली में जो पानी सॉइल के थ्रू बहता है वो बेटा डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द सॉइल, धीरे धीरे ही बहता है, ज्यादा तेज नहीं बहता, कुछ सॉइल्स को छोड़कर, तो जैसे ग्रेवल वगैरह को छोड़कर। लेकिन जो है वेलोसिटी में हम कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होते, हम इंटरेस्टेड होते हैं सीपेज डिस्चार्ज में। और सीपेज डिस्चार्ज कैसे निकाल सकते हैं? सीपेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ वॉइड्स। हर एक वॉइड का एरिया अलग होगा, हर एक वॉइड का शेप अलग होगा। और यह दूसरा तरीका क्या है?
दूसरा तरीका क्या है, जो डार्सी बाबा ने टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जो वेलोसिटी डिफाइन करी है उसको टोटल एरिया से मल्टीप्लाई। तो एरिया ऑफ वाइड्स निकालना आसान है या टोटल एरिया निकालना आसान है? टोटल एरिया निकालना आसान है। एरिया ऑफ वाइड्स कॉम्प्लेक्स होता है, वाइड्स का नेचर, एरिया ऑफ वाइड्स निकालना मुश्किल है। इसीलिए एज ए इंजीनियर वी आर इंटरेस्टेड इन द सीपेज डिस्चार्ज। इसीलिए हम लोग बेटा डार्सी बाबा के जो उन्होंने झूठी वेलोसिटी डिफाइन करी, जिसको हम सुपरफिशियल वेलोसिटी कहते हैं, उसकी मदद से ही हम सीपेज डिस्चार्ज निकाल लेते हैं। तो सॉइल इंजीनियरिंग में कहीं पर ये बोले, कभी बोले सीपेज वेलोसिटी या एक्चुअल वेलोसिटी, इसके अलावा कहीं और बोले, इन दोनों शब्दों के अलावा कहीं बोले वेलोसिटी ऑफ द सॉइल, वेलोसिटी ऑफ वाटर थ्रू सॉइल, तो समझ जाना कि ये सीपेज वेलोसिटी नहीं है, दिस इज द डिस्चार्ज वेलोसिटी। ये कॉमन सेंस है कि अगर वेलोसिटी थ्रू द पोर्स, वेलोसिटी थ्रू द वॉइड्स या सीपेज वेलोसिटी, ऐसे शब्दों से नहीं पुकारा गया वेलोसिटी को और सिंपली बोला गया वेलोसिटी ऑफ द वाटर थ्रू सॉइल, तो इसका मतलब यही है दैट इट दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज डिस्चार्ज वेलोसिटी। समझ आ रही बात? इसका रिलेशन याद रखिएगा, इस पर छोटा सा न्यूमेरिकल और कभी कभी ये फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, गेट में एक बार पूछ भी लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा सीपेज वेलोसिटी, डिस्चार्ज वेलोसिटी को क्या मैंने लिखा है, परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल मल्टीप्लाइड बाई आई डिवाइडेड बाई पोरोसिटी। अभी जो के बाई एन है ना बेटा, दिस के बाई एन ये कांस्टेंट है, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं एक और कांस्टेंट से, दैट इज कॉल्ड एज केपी। तो सीपेज वेलोसिटी आ जाती है, सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू केपी इंटू आई, सीपेज वेलोसिटी आ जाती है केपी इंटू आई। तो अगर मैं डार्सी लॉ को लिखूं, इफ आई राइट द डार्सी लॉ with respect to seepage velocity, तो seepage velocity will be directly proportional to hydraulic gradient, and this is the Darcy law, this is the Darcy law, this is the Darcy law with respect to which velocity, with respect to seepage velocity, with respect to seepage velocity, with respect to seepage velocity, जिसका कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन, जिसका कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन वेयर केपी है, केपी इज इक्वल टू के बाई एन, और ये केपी होता है बेटा कोफिशिएंट ऑफ, दिस केपी इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ, इस केपी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन। समझ पा रहे हैं क्या? तो आप देखो जरा, जितना कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन ज्यादा होगा उतनी ही परमिएबिलिटी भी ज्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों। एक बात यहां पर याद रखिएगा, वो बात मैं यहां पर नोट की फॉर्म में लिख देता हूं। देखो, जो पोरोसिटी की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच लाई करती है क्या? जो पोरोसिटी की वैल्यू है बेटा, वो बेटा कहां से कहां लाई करती है, इधर लिख रहा हूं, जो पोरोसिटी की वैल्यू है बेटा 0 से 1 के बीच लाई करती है। जब पोरोसिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई करती है तो ये पक्की बात है कि अगर बेटा डिनोमिनेटर की वैल्यू कम है तो सीपेज वेलोसिटी हमेशा हमेशा बेटा डिस्चार्ज वेलोसिटी से क्या होगी, ज्यादा। और बेटा कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन हमेशा कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी से क्या होगा, ज्यादा होगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, जो बातें हमने डिस्कस करी अबाउट द परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल। जो भी बातें हमने बेटा डिस्कस करी यहां पर इस स्लाइड में, जो बातें डिस्कस करी और प्रीवियस स्लाइड में हमने जो बातें डिस्कस करी आप लोगों के साथ, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, हमने एक नोट की तरफ बढ़ रहे हैं, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नोट, एक नोट की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज नोट। उसको याद रखना है, टिपिकल वैल्यूज ऑफ परमिएबिलिटी, के की टिपिकल वैल्यूज है ना। तो यहां नोट लिख रहा हूं बेटा, नोट, पहला नोट लिख रहा हूं, टिपिकल वैल्यूज ऑफ परमिएबिलिटी, टिपिकल वैल्यूज ऑफ के। जितना के की वैल्यू ज्यादा होगी पानी उतनी तेजी से बहेगा, सॉइल से पानी उतनी आसानी से बहेगा, सॉइल की परमेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो देखिए टिपिकल वैल्यूज ऑफ के, इसके लिए मैं आपके लिए एक टेबल बना देता हूं। नोट का पहला पॉइंट है, याद रखिएगा कभी कभी डायरेक्टली वैल्यूज एक नंबर में दे देगा और बताएगा बताओ कि भाई इसमें से कौन सी सॉइल है। तो यहां पर टिपिकल वैल्यूज ऑफ के लिख रहा हूं और साथ में आपको उनकी वैल्यूज बताऊंगा और सॉइल का बताऊंगा नेचर भी। तो ये सारी जो वैल्यूज आई हैं वो सारी की सारी वैल्यूज आई हैं बेटा किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां पर मैं ले रहा हूं बेटा क्या, यहां पर मैं ले रहा हूं बेटा के इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी और उसकी यूनिट लिख रहा हूं सेंटीमीटर पर सेकेंड में। उसकी यूनिट किस में लिख रहा हूं, सेंटीमीटर पर सेकेंड में लिख रहा हूं। बहुत अच्छी बात है। तो 4 जोन में से डिवाइड कर रहा हूं मैं, आई एम डिवाइडिंग इट इनटू 4 जोन्स। दिस इज द फर्स्ट जोन, दिस इज द सेकेंड जोन,
एंड दिस इज द थर्ड जोन एंड फोर्थ जोन। तो आपको ये वैल्यूज क्या करनी है, यू हैव टू मेमोराइज दीज वैल्यूज, आपको ये वैल्यूज मेमोराइज करनी है। अब सुनिए जरा, ध्यान सुनिए, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, अगर किसी सॉइल की परमिएबिलिटी बेटा 1, किसी सॉइल की परमिएबिलिटी बेटा, अगर किसी सॉइल की परमिएबिलिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ज्यादा है, तो यहां पर लिख रहा हूं नेचर ऑफ सॉइल, यहां लिख रहा हूं बेटा नेचर ऑफ सॉइल, तो सॉइल का नेचर कैसा होगा, बेस्ड अपॉन द एक्सपेरिमेंट ये पाया गया है कि अगर किसी सॉइल की परमिएबिलिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ज्यादा है तो उस सॉइल को हम बोलेंगे बेटा ग्रेवल, उसको क्या बोलेंगे, द सॉइल इज सेड टू बी ग्रेवल, द सॉइल इज सेड टू बी ग्रेवल, तो उस सॉइल को हम बोलेंगे बेटा ग्रेवल। अगर परमिएबिलिटी 1 से 10 की पावर -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के बीच में है तो उस सॉइल को बोलेंगे सैंड। 10 की पावर -3 से 10 की पावर -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड के बीच में है तो हमको बोलेंगे कि वो सॉइल 100% आपकी सिल्ट होगी, वो सॉइल क्या होगी, वो सॉइल 100% आपकी सिल्ट होगी। और अगर सॉइल की परमिएबिलिटी बेटा 10 की पावर -6 से कम है तो उस सॉइल को हम बोलेंगे कि वो सॉइल 100% क्या होगी, 100% क्ले होगी। तो आपके एग्जाम में बेटा क्या होगा, आपके एग्जाम में डेटा दे रखा होगा तो वो एमएम में भी दे सकते हैं, मीटर पर सेकंड में भी देख सकते हैं। आपको क्या करना है, डेटा को चेक करके आपको बेटा ये टिक मार कर आना राइट ऑप्शन। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, नोट का दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। वी आर मूविंग टू द नोट का दूसरा पॉइंट। देखिए यूएसबीआर ने भी सॉइल को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा है। सो अकॉर्डिंग टू यूएसबीआर, according to USBR, United States Bureau of Reclamation, according to USBR, soils are classified as, soils are classified as, यूएसबीआर के अकॉर्डिंग भी सॉइल्स को हम लोगों ने क्लासिफाई कर रखा है। कैसे क्लासिफाई कर रखा है देखिए, अकॉर्डिंग टू यूएसबीआर द सॉइल्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो एक साइड में मैं लिख रहा हूं बेटा परमिएबिलिटी, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई एम राइटिंग द परमिएबिलिटी, on the left hand side I am writing the permeability K, permeability K, और यूनिट दोनों में मैं सेम लिख रहा हूं। एक्चुअली जो उन्होंने वैल्यू दी थी वो mm पर सेकेंड में दी थी, और इधर मैं लिख रहा हूं बेटा नेचर ऑफ सॉइल, नेचर ऑफ सॉइल। ऐसे भी क्लासिफिकेशन किया गया है क्या, कि अगर सॉइल की परमेबिलिटी, तीन ग्रुप्स में बांटा गया सॉइल को, कि अगर सॉइल की परमेबिलिटी 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड से ज्यादा हो, सॉइल की परमेबिलिटी 10⁻⁻⁶ सेंटीमीटर पर सेकेंड से कम हो, और सॉइल की परमेबिलिटी 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻⁶ सेंटीमीटर पर सेकेंड के बीच में हो। अगर सॉइल की परमेबिलिटी 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड से ज्यादा होती है तो ऐसी सॉइल को हम बोलते हैं बेटा परवियस सॉइल। ऐसी सॉइल्स को क्या बोलते हैं, द सॉइल्स आर कॉल्ड एज परवियस सॉइल्स। अगर सॉइल की परमेबिलिटी 10⁻⁻⁶ से कम होती है तो ऐसी सॉइल्स को हम बोलते हैं बेटा इम्परवियस सॉइल्स। ऐसी सॉइल्स को क्या बोलते हैं, इम्परवियस सॉइल्स। और अगर सॉइल की परमेबिलिटी 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻⁶ के बीच में होती है तो ऐसी सॉइल्स को हम बोलते हैं सेमी परवियस सॉइल्स। ऐसी सॉइल्स को हम बोलते हैं बेटा सेमी परवियस सॉइल। तो नोट का दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। मूविंग फॉरवर्ड टू द नोट का तीसरा पॉइंट, नोट के तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। दिस इज द थर्ड पॉइंट, दिस इज द थर्ड नोट। देखिए आप डार्सी लॉ को तभी अप्लाई कर सकते हैं, यू कैन अप्लाई द डार्सी लॉ ओनली एंड ओनली व्हेन, यू कैन अप्लाई द डार्सी लॉ ओनली एंड ओनली व्हेन द फ्लो थ्रू द सॉइल इज लैमिनार, है ना। जब पानी का फ्लो लैमिनार होगा तभी आप डार्सी लॉ को लगा सकते हैं। सो यू कैन अप्लाई द डार्सी लॉ, अप्लाई, वी कैन अप्लाई द डार्सी लॉ, we can apply the Darcy law only when flow of water, only when flow of water, only when flow of water is laminar,
जब बेटा लेमिनार फ्लो होता है तभी आप बेटा, जब लेमिनार फ्लो होता है तभी आप क्या कर सकते हैं, डार्सी लॉ को लगा सकते हैं। अब पता कैसे लगेगा कि फ्लो लेमिनार है? फॉर लेमिनार फ्लो पता कैसे लगेगा? लेमिनार फ्लो आप दिख थोड़ी रहा है आपको। लेमिनार फ्लो के लिए आप निकालेंगे फ्लो का रेनॉल्ड्स नंबर। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से कम आती है तब बेटा आपका फ्लो कैसा होगा? लेमिनार। और अगर टर्बुलेंट फ्लो की बात करें तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए, टर्बुलेंट फ्लो की बात करें तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू आती है बेटा 1 से ज्यादा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नोट के चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। वी आर मूविंग टूवर्ड्स द फोर्थ पॉइंट, द फोर्थ एंड लास्ट नोट ऑफ, चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए बढ़ा, देखिए जरा, आप डार्सी लॉ को बेटा तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका फ्लो कैसा हो? लेमिनार हो। लेमिनार फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स, लेमिनार फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1 से कम या 1 से बराबर होनी चाहिए, और टर्बुलेंट फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है। देखिए हम कभी भी बेटा डार्सी लॉ को टर्बुलेंट फ्लोस के लिए नहीं लगा सकते। लेकिन जब पानी एक ग्रेवली सॉइल से बहता है तो जो पानी का फ्लो है बेटा टर्बुलेंट हो जाता है। पता कैसे लगेगा? जब पानी एक ग्रेवल से फ्लो करा तो हमने उस पानी के फ्लो का रेनॉल्ड्स नंबर निकाला और वो रेनॉल्ड्स नंबर हमें मिला 1 से ज्यादा। तो जब भी पानी एक ग्रेवल के थ्रू फ्लो करता है तब हम कभी भी बेटा डार्सी लॉ को नहीं लगा सकते। तो यहां पे चौथा लास्ट पॉइंट लिखेंगे, वी कैन नॉट अप्लाई, वी कैन नॉट अप्लाई, वी कैन नॉट अप्लाई, वी कैन नॉट अप्लाई द डार्सी लॉ, we cannot apply the Darcy law for the flow, for the flow through gravels। जब पानी बेटा ग्रेवल्स के थ्रू फ्लो करेगा तो हम कभी भी डार्सी लॉ को फॉर द फ्लो थ्रू ग्रेवल्स, बिकॉज क्यों होता है ऐसा? बिकॉज बिकॉज द फ्लो थ्रू, बिकॉज द फ्लो थ्रू, because the flow through Darcy law, because the flow through Darcy law is turbulent, because the flow through Darcy law is turbulent flow। समझ पा रहे हैं क्या? तो ये आपने इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। इतनी बातों तक कोई दिक्कत अगर हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेक्स्ट टॉपिक इज द मेथड्स। Next topic is methods to determine the coefficient of permeability. Methods to determine, methods to determine the, methods to determine the coefficient of permeability. Methods to determine the coefficient of permeability. Methods to determine the coefficient of permeability. Coefficient of permeability को निकालने के कई सारे methods हैं। The methods to determine the coefficient of permeability, coefficient of permeability को निकालने के कई सारे आपके methods हैं। There are certain lab methods, there are certain field methods, there are certain empirical methods। तो देखिए सबसे पहले methods हैं, they are called as lab methods। There are certain lab methods। lab methods में आपके 3 methods आते हैं। The first method is called as constant head। The first method is called as constant head permeability test। The first method is called as constant head permeability test। The second method is called as falling head permeability test। The third method is called as capillarity permeability test। कैपिलरिटी परमिएबिलिटी टेस्ट। लेकिन इस कैपिलरिटी परमिएबिलिटी टेस्ट में आपके गेट में सवाल पूछा जाएगा नहीं, क्योंकि हम गेट का रिवीजन कर रहे हैं तो वही काम करेंगे जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। कैपिलरिटी परमिएबिलिटी टेस्ट में एग्जाम में सवाल नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट विल मूव टू द फील्ड टेस्ट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फील्ड टेस्ट में। देयर आर सर्टेन फील्ड टेस्ट और फील्ड मेथड्स जिसकी मदद से हम परमिएबिलिटी निकाल सकते हैं, और इसमें भी 2 हैं। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज पंपिंग, the first is called as pumping in test
इन पंपिंग इन टेस्ट को हम पढ़ लेते हैं हाइड्रोलॉजी में, तो यहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं। एंड द सेकेंड टेस्ट इज कॉल्ड एज पंपिंग इन टेस्ट एंड द सेकेंड टेस्ट इज कॉल्ड एज pumping out test. The second test is called as pumping out test. इस pumping out test को भी हम दो केसेस के लिए करेंगे, for the unconfined aquifer, और हम करेंगे for the confined aquifer. We will do for unconfined aquifer and we will do for confined aquifer. और इसी तरीके से जो अब तीसरे मेथड्स हैं जिसकी मदद से आप परमेबिलिटी निकाल सकते हैं, they are nothing but the indirect methods, using certain indirect methods. There are certain indirect methods जिसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हैं, आप सॉइल की परमेबिलिटी निकाल सकते हैं। बहुत सारे इंजीनियर्स ने बहुत सारे टेस्ट किए जिसकी मदद से उन्होंने अलग अलग टेस्ट करने के बाद उन्होंने बेटा परमेबिलिटी निकालने के फॉर्मूले दिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा लैब टेस्ट। जैसा कि हम रिवीजन कर रहे हैं, तो बेटा रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन आपको ये सारी चीजें अगर एक बार एग्जाम में आ जाएं तो छोड़ के नहीं आना है। दे आर कॉल्ड एज लैब टेस्ट। लैब टेस्ट में सबसे पहले करेंगे हम लोग बेटा कांस्टेंट हेड, सबसे पहले करेंगे कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट। तो देखिए कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट में नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग एक सॉइल सैंपल पे, मान लो सॉइल सैंपल का एरिया, ध्यान सुनिएगा, हम एक सॉइल सैंपल का ए क्या है, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ध्यान सुनिएगा, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एल क्या है, लेंथ ऑफ द सैंपल। जितनी लेंथ होगी सैंपल की उतना ही आपका फ्लो होगा। लेंथ ऑफ द सैंपल, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सैंपल, एल इज द लेंथ ऑफ द सैंपल। ओके, यस और नो। तो अब हम लोग इसमें क्या कराते हैं, हम इसमें क्या कराते हैं, एक सॉइल का जो सैंपल है जिसका एरिया ए है, जिसकी लेंथ एल है, इसके थ्रू एक कांस्टेंट हेड एच पर पानी को फ्लो कराते हैं। इस मेथड में मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं, आपने पढ़ तो रखा ही है, रिवीजन कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि टाइम लग जाएगा। हम लोग इसको रिवाइज कर रहे हैं तो आपने डायग्राम तो एक को पता ही होगा, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉइल का सैंपल है, एक कांस्टेंट हेड पर, अपर चैम्बर होता है, नीचे वाला चैम्बर होता है, तो एक एट कांस्टेंट हेड, हम एक कांस्टेंट हेड एच, स्मॉल एच, एक कांस्टेंट हेड पर पानी को क्या कराते हैं, एट कांस्टेंट हेड वाटर फ्लोज, पानी को फ्लो कराते रहते हैं, और मान लो पर फॉर एग्जांपल आपने टी समय में पानी को फ्लो कराया, और पानी को फ्लो कराकर हम लोग टी टाइम में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेटा वी वॉल्यूम क्या कर लेते हैं, वी वॉल्यूम कलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप टी टाइम में वी वॉल्यूम कलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको जो सॉइल के थ्रू बहने वाला डिस्चार्ज, इन दोनों की मदद से अगर आपने टी समय के लिए पानी को बहने दिया तो वहां से क्या होगा, वी वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर निकलेगा सॉइल के थ्रू, और टी समय में निकलेगा तो सॉइल के थ्रू बहने वाला डिस्चार्ज आपको मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू वी अपॉन टी। डिस्चार्ज हो जाएगा वी अपॉन टी। और डिस्चार्ज जो बेटा ये मिला है आपको, एक कंटेनर के अंदर पानी भर लेंगे, टी समय तक डिस्चार्ज मिल जाएगा। ये डिस्चार्ज सॉइल के थ्रू बहकर आया, तो Q इज इक्वल टू, सॉइल के थ्रू जब पानी बहता है तो क्या लगा सकते हैं, Q इज इक्वल टू के आई ए। तो यहां से Q आ जाएगा, K आपको परमेबिलिटी निकालनी है, I क्या होगा, कांस्टेंट हेड, जितना हेड होता है उतना ही लॉस हो जाता है, तो हेड लॉस कितनी लेंथ में होगा, L लेंथ में, मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहां से आपकी जो परमेबिलिटी आएगी उस परमेबिलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा आपका K इज इक्वल टू क्यू एल अपॉन ए एच। परमेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू क्यू एल अपॉन ए एच। तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड में हम एक कंटेनर के अंदर सॉइल के थ्रू पानी को एच हेड पर फ्लो कराते हैं और वी वॉल्यूम कलेक्ट कर लेते हैं टी टाइम में, और उससे डिस्चार्ज निकाल लेते हैं। तो बेटा
हम लोग इस मेथड को कौन सी सॉइल के लिए यूज कर पाएंगे? कांस्टेंट हेड टेस्ट को उन्हीं सॉइल के लिए यूज कर पाएंगे जिसमें हम डिस्चार्ज नोट कर सकें, जिसमें हम एक टी समय में कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर को कलेक्ट कर सकें। तो ऐसी सॉइल्स जिसमें आप टी समय में कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्ट कर सकते हैं, ऐसी सॉइल्स की परमिएबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो इसका मतलब कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट एक ज्यादा परमिएबिलिटी वाली सॉइल के लिए यूज किया जाता है, और ज्यादा परमिएबिलिटी की सॉइल्स होती है कोर्स ग्रेन सॉइल्स। तो ये जो मेथड यूज किया जाता है बेटा, ये जो मेथड यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट। इट इज यूज्ड फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल, सीजीएस कोर्स ग्रेन सॉइल की परमिएबिलिटी निकालने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अब हम दूसरे लैब मेथड की तरफ बढ़ रहे हैं। द सेकेंड लैब मेथड इज कॉल्ड एज फॉलिंग हेड। द सेकेंड मेथड इज कॉल्ड एज फॉलिंग हेड। The second method is called as falling head or variable head. Falling head or variable head permeability test. Falling head or variable head permeability test. Falling head or variable head permeability test. तो देखिए फॉलिंग हेड और वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैंड पाइप होता है सॉइल सैंपल में, ऊपर एक रिजर्वायर था कांस्टेंट हेड में, लेकिन इस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक पतला सा स्टैंड पाइप होता है, दिस इज द स्टैंड पाइप, और नीचे सॉइल का सैंपल होता है। इससे कौन कनेक्टेड होता है? नीचे सॉइल का सैंपल कनेक्टेड होता है, अगर आपको याद आता हो। तो हम लोग क्या करते हैं, ये सॉइल सैंपल तो मैं नहीं दिखा रहा हूं पूरा क्योंकि फिर नीचे रिजर्वायर होता है, तो मैं ऊपर वाला टाइप दिखा रहा हूं खाली आपको। तो हम लोग बेटा एक्चुअली क्या करते हैं, एक्चुअली इस स्टैंड पाइप का मैंने मान लिया एरिया ए है, ए इज द एरिया ऑफ स्टैंड पाइप, इस सॉइल सैंपल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और इस सॉइल सैंपल की लेंथ मैंने मान ली फॉर एग्जांपल एल है। हम क्या करते हैं, इस स्टैंड पाइप से पानी को फ्लो कराते हैं। इस स्टैंड पाइप से क्या करते हैं, इस स्टैंड पाइप से हम लोग पानी को फ्लो कराते हैं। कहां से कहां? हम लोग बेटा हेड H1 से हम लोग किसी दूसरे हेड H2 तक पानी फ्लो कराते हैं, और हेड H1 से H2 तक पानी के गिरने में, स्टैंड पाइप में पानी के हेड H1 से H2 गिरने में जितना समय लगता है उस समय को नोट कर लेते हैं। अगर हेड H1 था तो मैंने स्टॉप वॉच से चेक किया तो उस समय टाइम T1 था, फिर जब हेड H2 पहुंचा तो स्टॉप वॉच से टाइम चेक किया तो टाइम T2 हो गया। तो बेटा इसको H1 से H2 में पहुंचने में समय कितना लगा, T2 माइनस T1, कितना समय लगा? तो T2 माइनस T1 दैट इज T टाइम में H1 से H2 गिरने में जितना समय लगा उसको नोट करके हम लोग सॉइल की परमिएबिलिटी निकाल लेते हैं, है ना। और कैसे निकालते हैं, देखिए जरा, देखिए कैसे निकालते हैं। परमिएबिलिटी निकालते हैं K इज इक्वल टू स्मॉल a अपॉन कैपिटल A मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल L अपॉन कैपिटल T और लॉग ऑफ बेस E, देखिए बेस लिख रहा हूं, लॉग ऑफ बेस E H1 डिवाइडेड बाई H2। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट से सॉइल की परमिएबिलिटी निकाल लेते हैं। क्लियर हो रही है बात? सो व्हाट इज ए? ए इज द एरिया ऑफ स्टैंड पाइप, मैंने लिख भी दिया, फिर भी लिख देता हूं एक बार। ए इज द एरिया ऑफ स्टैंड पाइप, ये जो पतला सा हमने पाइप लिया है इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ स्टैंड पाइप। व्हाट इज कैपिटल ए? कैपिटल ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कैपिटल ए को क्या बोलते हैं? कैपिटल ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बहुत अच्छी बात है। व्हाट इज एल? एल इज द लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल। L is the length of the soil sample। सॉइल सैंपल की कितनी लेंथ है? अगर हम पूछें T तो T होगा आपका T2 माइनस T1, मतलब वो समय जिस समय में हेड H1 से H2 गिर गया है। सो इट इज द टाइम इंटरवल, इट इज बेसिकली द टाइम इंटरवल, इट इज द टाइम इंटरवल इन विच, it is the time interval in which head falls from H1 to H2, गिरने में जितना समय लगा उसको हम निकाल लेते हैं। यस और नो? क्लियर हो रही बात? इतनी बात आई होप आपको समझ में आई। अब क्या होता है ना, कभी कभी जब आप फॉलिंग हेड टेस्ट कई बार करते हैं, कई सारे ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉलिंग हेड टेस्ट के डेटा को चेक करने के लिए, फॉलिंग हेड टेस्ट के डेटा को हम लोग बेटा चेक करने के लिए हम लोग स्टैंड पाइप में हेड को गिराते हैं। हम लोग क्या करते हैं, स्टैंड पाइप में हेड को गिराते हैं। H1 से H2 हेड गिरा, मान लो फॉर एग्जांपल इसमें जो टाइम लगा
टी इज इक्वल टू टी, दो इक्वल टाइम में हेड को गिराते हैं हम लोग। टी समय पहले टी वन इज इक्वल टू पहले समय टी1, कैपिटल टी1 इज इक्वल टू टी समय में हम हेड को H1 से H2 गिराया, उसके बाद H2 को फिर H3 तक गिराया, है ना, और उसमें भी समय कितने लगने दिया, समय लगने दिया टी। मतलब दो इक्वल टाइम में हम हेड्स को गिराते हैं। पहला टाइम ले लिया कुछ 2 मिनट, 2 मिनट में H1 से H2 गिराया, फिर उसके बाद फिर 2 मिनट, फिर उसके बाद 2 मिनट लिए, फिर H2 से H3 गिराया, फिर H2 से H3 गिराया। तो हम लोग ऑब्जर्वेशंस को चेक करने के लिए हम लोग इस तरीके से काम करते हैं, दो इक्वल टाइम इंटरवल में हेड को H1 से H2 और H2 से H3 गिराते हैं। और अगर ये H1 H2 H3 में जो रिलेशन है वो इस रिलेशन को फॉलो करता है, दैट इज इस रिलेशन को फॉलो करता है, दैट इज इक्वल टू H2 स्क्वायर इज इक्वल टू H1 इंटू H3, या फिर इसको और भी कह सकते हैं H2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ H1 इंटू H3। अगर बेटा हमारी ये तीनों हेड्स अगर इस रिलेशन को फॉलो करते हैं तो हम ये बोल देते हैं कि डेटा इज कंसिस्टेंट। हमारा जो डेटा हमें मिला है फॉलिंग हेड टेस्ट से वो क्या है, कंसिस्टेंट है, सही है, उसमें कोई भी आपका मिसिंग चीज नहीं है। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। फॉलिंग हेड टेस्ट और वेरिएबल हेड टेस्ट की वैल्यूज आपके बेसिस पर समझ आ रही बात। फिर मैंने आपको बताया कैपिलरिटी हेड परमेबिलिटी टेस्ट में एक ग्लास ट्यूब होती है, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन, अगर आपको वो टेस्ट देखना है तो मैंने मैराथन सेशंस में पढ़ा रखा है, जाकर देख लीजिए। लेकिन गेट में उसके आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, गेट में कभी भी वो टेस्ट आता नहीं है। इतनी बात यहां तक क्लियर हुई हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो हम लोगों ने आज की क्लास में अभी तक क्या किया, आज की क्लास में हम लोगों ने बताया कि परमेबिलिटी क्या होती है, डार्सी लॉ क्या होता है, डिस्चार्ज वेलोसिटी क्या होती है, सीपेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्चार्ज वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, डार्सी लॉ विद रिस्पेक्ट टू सीपेज वेलोसिटी क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ परकोलेशन क्या होता है, टिपिकल वैल्यूज ऑफ के क्या होती है, अकॉर्डिंग टू यूएसपीआर सॉइल को कैसे क्लासिफाई किया गया है। हमने ये भी सीखा कि डार्सी लॉ को कब लगा सकते हैं, कब नहीं लगा सकते, कौन सी सॉइल्स के लिए लगा सकते हैं, और वो सारे मेथड जिनकी मदद से हम सॉइल की परमेबिलिटी निकाल सकते हैं। लैब मेथड्स का हमने डिस्कशन कर लिया, फील्ड मेथड्स और इनडायरेक्ट मेथड्स हमारे रह गए, जिसको हम लोग क्या करेंगे, जिसको हम लोग बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की हम अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको बेटा वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, है ना, और वीडियो को यहां पर आप इसके द्वारा लाइक कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिविल बाई सिद्दीकी सर के नाम से एक चैनल है, क्लास के बाद कोई भी डाउट आए किसी भी सवाल में तो उस चैनल पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर प्लस सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है तो आप मेरा कोड ES001 यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई डाउट है तब मुझसे आप टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हैं। तो हमारे चैनल लेट्स क्रैक गेट एंड ESC को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए अपकमिंग डेज में और भी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पर हमारी पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही है कुछ अच्छा करने के लिए। सो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं बेटा। हमारी एक और अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। देखिए, हमारी ये जो क्लास होती है रैपिड रिवीजन की, वो डेली बेटा 4 बजे होती है। डेली कितने बजे होती है, 4 बजे होती है। और हमारी जो क्वेश्चंस की क्लास है वो हमारी डेली 6 बजे होती है। तो हमारी जो क्वेश्चंस की क्लास होगी वो हमारी बेटा 6 बजे होगी। तो उस क्वेश्चन की क्लास को करना मत भूलिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस की क्लास आपको बहुत बेनिफिशियल करेगी। आज ही 6 बजे आपकी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज की क्लास होगी, उसको बेटा जाकर जरूर कर लीजिएगा, जिसमें हम प्रॉब्लम्स करेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस के, सीपेज के, इन सारे प्रॉब्लम्स को करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।